So dear students, in this video I will discuss some more questions of exercise 8.1 of class 12 Maths NCERT. First see question number 9. Question number 9, exercise 8.1. Question is like this: find the area of the region. Find the area of the region bounded by the parabola x square equal to y and y is equal to mod x. So these are two curves given. So x square equal to y is similar to x square equal to 4ay, which is upward parabola. So draw an upward parabola, and then y is equal to mod x, that is y equal to plus minus x. Graph of modulus is V-shaped graph. So this type of graph you will get. So this line is y is equal to x, this line is y is equal to minus x. So now you have to find area of the region bounded by the parabola and this. So this is the region we want to calculate, and by symmetry both will be equal. So required area is equal to area of shaded region and this will be 2 times area in first quadrant. So this A point, O point is A point. Now we write this as, this is area between two curves, so we can write this as y1 minus y2 dx. And what will be the limit for this? Value of x at O will be 0, or what is the value here? You have to solve for both these equations. So solve for y equal to x. This is the line, and parabola is y equal to x square. Solving these two, you will get the point of intersection A. So this implies x square equal to x, or x square minus x equal to 0. This implies x common, x minus 1 equal to 0. You get x equal to 0, x equal to 1. So therefore limit will be 0 and 1. This is the point where x is 0, here point is x is 1, y is also 1. So in this way, this is the way you will find the area 2 times in the first quadrant. So 2 is also to be multiplied. तो इस क्वेश्चन में आपको एरिया फाइंड करना है. एक पैराबोला दिया है x स्क्वायर इक्वल टू y, जो अपवर्ड पैराबोला है, और ये कर्व दिया है y इक्वल टू मॉड x, मतलब ये y इक्वल टू प्लस माइनस x. दो लाइंस को कंबाइंड वे में रिप्रेजेंट करता है. इस ग्राफ आपको मॉड x ग्राफ आपने क्लास 11 में पढ़ा है, वी शेप का ग्राफ होता है. तो वही आपको दोनों से बाउंडेड, मतलब ये रीजन आपका और ये रीजन, और बाई सिमेट्री ये दोनों रीजन आपका सेम ही होगा. डायग्राम में तो थोड़ा कम ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन दोनों आपका सेम ही होगा. किस तरह से आपको जो शेड एरिया निकालना है उसको 2 टाइम्स एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं. तो y1 माइनस y2, y1 क्या है यहाँ पर? ये आपका y1 है जो ऊपर वाला कर्व है, और ये y2 है जो नीचे वाला कर्व है. पैराबोला से नीचे है आपका, ये आपको ध्यान रखना है. फिर आपको लिमिट के लिए क्या करना था? लिमिट के लिए दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों कर्व दो जगह मिल रहे हैं, एक तो O पे मिल रहे हैं और एक A पे मिल रहे हैं. O पर तो क्लियर ही है कि आपका ओरिजिन है. इसको सॉल्व किया तो x की दो वैल्यू मिली, 0 और 1. तो 0 to 1 की लिमिट हो गई. अब आप इसमें आगे का जो स्टेप्स है इंटीग्रेशन वाला उसको करेंगे. सो नाउ यू कैन, दिस एरिया इक्वल टू 2 times
0 to 1, y1 means y equal to x minus x square dx. So integrating this you will get, so now we can integrate this as 2 times x square by 2 minus x cube by 3, 0 to 1. So now apply the limit. This is equal to 2 times 1 by 2 minus 1 by 3. This is the value at upper limit, minus value will be at 0 at lower limit. So now it is, you can multiply this inside. 2 by 2, that is 1, minus 2 by 3 is equal to 1 by 3 square units. So this is the required area between the given upward parabola and the curve y equal to mod x, that is modulus function. तो मिलिए आपको ये एरिया के बाद आपको y1 आपका फर्स्ट कर्व है जो अपर कर्व होता है ऊपर वाला y इक्वल टू एक्स लाइन और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका पैराबोला है। तो y की वैल्यू दोनों रख देना इसमें आपको, x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेट कर देना एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। इसके बाद लिमिट अप्लाई कर देना है। अपर लिमिट पे वैल्यू आपको 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 मिलेगी, लोअर लिमिट पे वैल्यू 0 है। इस तरह से आपका 1 माइनस 2 बाई 3, 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया हो गया। Question number 10. Find the area bounded by x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2। तो ये आपके पास दो कर्व है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y is similar to x square equal to 4ay, which is your upward parabola, and next is your this line x equal to 4y minus 2. We can convert this into intercept form, x minus 4y equal to minus 2 divided by minus 2, you will get x upon minus 2 plus, this you can write as plus 4y upon 2 equal to 1, because when you are dividing by minus 2, both will become positive, and this you can write as x upon minus 2 plus y upon 1 by 2 equal to 1. This is the line, x intercept minus 2, y intercept 1 by 2. तो इस तरह से आपको लाइन को ड्रॉ करने में हेल्प लेगी अगर आपको इंटरसेक्ट पता होंगे। तो अब आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ द एक्सिस x o x dash, y o y dash। ड्रॉ द अपवर्ड पैराबोला x square equal to 4y, ये आपका अपवर्ड पैराबोला, और लाइन है अभी ये x इंटरसेप्ट माइनस 2 है, तो जैसे ये आपका माइनस 1 हुआ, ये माइनस 2 हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट आपको 1 बाई 2 लेना y एक्सिस पे, यहाँ अगर 1 हुआ तो यहाँ पे कहीं 1 बाई 2 होगा, तो ये आपका पॉइंट हो गया दूसरा वाला। इसको ज्वाइन करके आप इंटरसेक्ट लाइन बना सकते हैं। तो दिस इज द लाइन जिसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो अब आपको एरिया कौन सा फाइंड करना है? एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन। पैराबोला और लाइन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है, तो ये आपका पूरा रीजन आपको फाइंड करना है। पैराबोला एक बाउंड्री है, लाइन दूसरी बाउंड्री। तो यहाँ पे भी आप y1 माइनस y2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अपर कर्व में से लोअर कर्व को माइनस करना होगा, लेकिन पहले दोनों पॉइंट आपको, जैसे ये पॉइंट ए है आपका और ये बी है, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे आपको। इसके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन 1 है जो पैराबोला का है, ये इक्वेशन 2 है जो लाइन का है। इनको सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y यहाँ लिख सकते हैं आप।
तो वैल्यू 4y की जगह एक्स स्क्वायर रख सकते हैं यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन फैक्टराइज दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे माइनस 2 आना चाहिए, वो आ जाएगा आपका। तो ये भी प्रोडक्ट आपका, ये तो माइनस एक्स है ही। अब इसको आगे आप फैक्टराइज जब करेंगे तो आपको ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यू गेट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 एंड 2। ये दो वैल्यूज आ गई आपकी, x की दो वैल्यूज -1 और 2। तो यहाँ पे एक पर आपके x की वैल्यू हो जाएगी, a पे आपका x की वैल्यू -1 है और b पर जो होगी वैल्यू 2 है। y से यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा काम नहीं है, y आप पॉइंट निकालना आपको निकाल सकते हैं। तो मेनली ये आपका इस तरह से पहले क्या करना है, प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद दोनों कैसे प्रॉपर ड्रॉ, एक तो अपवर्ड पैराबोला है आपका और दूसरा आपका ये लाइन है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। -2 उसका x इंटरसेप्ट हुआ, 1/2 उसका y इंटरसेप्ट हुआ, इनको ज्वाइन करते हुए लाइन आके बढ़ा दिया आपने। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन 1 और 2। तो इसका क्या किया, y की जगह एक्स स्क्वायर यहाँ रख दिया, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 एक साइड में ले आए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको फैक्टराइज करना है मेनली आपको, तो ये आपको -x को -2 x प्लस x लिख दिया। अब x कॉमन लिया तो x -2, यहाँ पर 1 कॉमन तो x -2 दोबारा कॉमन x प्लस 1। तो x की दो वैल्यू मिली -1 और 2, a पर आपकी x वैल्यू -1 है और b पर 2। सो रिक्वायर्ड एरिया, शेडेड एरिया इज इक्वल टू, shaded area is equal to, limit will be from -1 to 2, -1 to 2 y1 minus y2 dx। ये आपका होगा y1 क्या होगा यहाँ पे, ये अपर कर्व है आपका, y1 आपका लाइन है जो ऊपर है और y2 क्या है, पैराबोला है जो लोअर पोजीशन, ये ध्यान रखना आपको। तो y1 आपका तो पैराबोला था, पैराबोला का इक्वेशन आपको दिया हुआ था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। यहाँ से आप दोनों जगह y का वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 आएगा। पहले आपको लाइन से लिखना है, y लाइन ये है आपका, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए x प्लस 2 बाई 4। यहाँ से जब इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 4y इक्वल टू -2। ये दिया हुआ इक्वेशन आपका। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आएगी x प्लस 2 बाई 4 माइनस यहाँ से y की वैल्यू x स्क्वायर बाई 4 और ये आपका dx। ये y1 हुआ, ये y2 हुआ, y1 माइनस y2, लिमिट आपकी -1 से लेकर 2 तक। आगे इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कंप्लीट। तो अब आप इसको देखेंगे तो 1/4 तो कांस्टेंट ही है इसमें, x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx -1 to 2। So now integrate this 1/4 x square by 2 plus 2x minus x cube by 3 -1 to 2, and now apply the limit. Solve for upper limit, 2 square by 2 is 2, 2 into 2 is 4 minus 2 cube by 3 8 by 3. This is the value at upper limit. At lower limit, -1 square by 2 is 1 by 2, then -2, and then -1 by 3 will become +1 by 3. So now you have to simplify this further. So simplifying it further, you will get, so here you will get 1/4 equal to 6 minus 8 by 3, 6 minus 8 by 3 minus, here it is 1/2 plus 1/3 is 5/6 minus 2. This is 1/4 times 18 minus 10 is 10/3, and this is 5 minus 12 minus 7/6. So simplifying it is 1/4, 10/3 plus 7/6,
and when you simplify this you can also write 20 by 6, so totally 1 by 4 into 27 by 6, so you can divide by 3, 3 2 ja 6, 3 9 ja 27, so answer is 9 upon 8. Therefore answer is 9 upon 8 square units. ये आपका शेडेड एरिया जो था उसका कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। मेनली आपको y1 y2 क्या है, लाइन है, y2 क्या है, पैराबोला है। तो y1 के लिए आपको लाइन का जो इक्वेशन था वहाँ से y की वैल्यू रखना है, और y2 पैराबोला है, पैराबोला के इक्वेशन से ये है आपका, यहाँ से y की वैल्यू रखना है। लिमिट आपने ये पहले डिसाइड कर लिया -1 से 2 के बीच में, 1/4 कांस्टेंट, अब इसको इंटीग्रेट किया, x² + 2x - x³ 3, और फिर लिमिट अप्लाई कर देना आपको। अपर लिमिट पे 2 + 4 - 8/3, 1/2 - 2 और ये 1/3। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करते चलना एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y² = 4x and the line x = 3. Here y² = 4x is similar to y² = 4ax, which is right-handed parabola, and this line is x = 3, line parallel to y-axis. So draw the diagram. So you will have right-handed parabola, x, O, x dash, y, O, y dash. This line is on the right side, this line x = 3 line. So now we have to find area of the region bounded by this curve and this line. So one boundary is this parabola, other boundary is this. So total area is required. This total area is required. And due to symmetry, we can find area in the first quadrant and multiply it by 2. इस तरह से एरिया आपको फाइंड करना है। y² = 4x का है और राइट हैंडेड पैराबोला है, इस तरीके का पैराबोला, और ये x = 3 कैसी लाइन है, पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन है, ये वाली लाइन है, इसके बीच का एरिया निकालना है आपको। ये पूरा एरिया मतलब एक बाउंड्री पैराबोला और दूसरी बाउंड्री लाइन, और सिमेट्री की वजह से जो एरिया आपका x एक्सिस के ऊपर है वही नीचे भी है, इसलिए आपको सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यू विल राइट रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ shaded region is equal to 2 into area in first quadrant, that is 2 times, for this area limit will be 0 to 3 y dx, and what is y? Y is your parabola which is given already in the question. Y² = 4x, y² = 4x is your parabola. So y will be 2 root x dx, limit 0 to 3, so it is 4 times 4 is constant, root x dx 0 to 3, and now integrate x power 3/2 into 2/3 as constant 0 to 3, and now apply the limit. So 8/3 into 3 root 3, lower limit value will be 0. So now you will have total, what is the area? 3 will cancel, you will get 8 root 3 square units. इस तरह से आपको ये एरिया फाइंड हो जाएगा, क्योंकि आपको टोटल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली 2 रूट x, इसको इंटीग्रेट किया, 2 कांस्टेंट हुआ, रूट x का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 और 3/2 से डिवाइड होगा तो 2/3 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 8/3, और उसके बाद लिमिट अप्लाई किया 3 रूट 3 माइनस 0, 3 कैंसिल हो जाएगा और 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स ये आपका आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।